پہلے ویزیبلٹی پہ بات کر لیتے ہیں. لائسنسز بزنسز کی آبلیگیشنز ہوں گی, ریکارڈز مینٹین ہوں گے, رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ہوں گے, فٹ اینڈ پراپر سٹینڈرڈز ہوں گے, AML, CFT کنٹرولز, ریگولیٹری سپرویژن ہوگی. سارے کنسرنز انفارمل فلوز اور illicit فائنانس کے ہیں, تو ان کا سولوشن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو انڈر گراؤنڈ پش کر دیں. سولوشن لیجیٹیمیٹ ایکٹیویٹی کو ریگولیٹری پیرامیٹر کے اندر لے کے آنا ہے. دوسری بات ہے پروٹیکشن کی. پاکستانی کنزیومرز کو گریٹر پروٹیکشن اور ریکورس ملنا چاہیے. کسٹمر ایسٹس جو ہیں وہ سیف گارڈ ہونے چاہیے, گورننس میٹر کرنی چاہیے, سائبر سیکیورٹی میٹر کرنی چاہیے, ڈسکلوجر میٹر کرنی چاہیے, مارکیٹ کنڈکٹ میٹر کرنا چاہیے, ایک کمپلینس کا میکنزم ہونا چاہیے. گورنمنٹ اسپیکولیشن انکریج نہیں کر رہی. ریگولیشن کا مطلب پروٹیکشن اور اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور کنزیومرز اور بزنسز کا تحفظ ہے. تیسری چیز ہے جی کریڈیبلٹی. آج ہم گلوبل انسٹیٹیوشنز کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہیز اے لا. پاکستان کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ ورچوئل ایسٹس ریگولیٹر ہے. پاکستان کے پاس لائسنسنگ سٹینڈرڈز. پاکستان از اوپن فار بزنس. اگر کریڈیبل انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کرنا چاہتی ہیں تو وی ویلکم دیم, لیکن پاکستان کے قانون کے تحت آپریٹ ہوں گی, کمپلائنس کی جائے گی. اور چوتھی چیز ہے اپرچونٹی, اور میرے لیے یہاں سے ہی کانورزیشن سب سے انٹرسٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے صرف ریگولیشنز صرف ایکسچینجز کو سپروائز کرنے کے لیے نہیں بنائی. ہم نے وہ ریگولیٹری فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے جس کے اوپر پاکستان فائنینشیل انوویشن اور انکلوژن کے نیکسٹ فیز کو ریسپانسبلی ایکسپلور کر سکتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں کہیں تو ایک کے پاس فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی ہے ٹو بلڈ دا فیوچر آف فائنانس ان پاکستان. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کی امپورٹنس کیوں ہے, تو ہمیں گلوبل فائنینشیل سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں پچھلے 30 سال میں انٹرنیٹ نے انفارمیشن کا انفراسٹرکچر ٹرانسفارم کیا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ لیٹرز ای میلز بن گئے, نیوز پیپر ویب سائٹس بن گئیں, شاپ ای کامرس پلیٹ فارمز بن گئے, ٹیلی فون اسمارٹ فون بن گئے. انفارمیشن کی کاسٹ اور سپیڈ فنڈامنٹلی چینج ہو گئی ہے. اب ٹیکنالوجی ایک اور لیئر کو ٹرانسفارم کر رہی ہے, وہ ہے ویلیو, وہ ہے پیسہ. پیسہ کیسے موو ہوتا ہے, ایسٹس کیسے اون ہوتے ہیں, بانڈز اور سیکیورٹی کیسے ایشو ہوتی ہے, ٹرانزیکشنز کیسے سیٹل ہوتی ہیں, کریڈٹ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اسی ٹرانسفارمیشن میں بلاک چین, اسٹیبل کوائن, ٹوکنائزیشن اور ڈیفائی آتے ہیں. بلاک چین کو سمپل الفاظ میں سمجھیں تو یہ ایک اونرشپ اور ٹرانزیکشنز کو ڈیجیٹل ریکارڈ کو مینٹین اور ٹرانسفر کرنے کی ٹیکنالوجی ہے. اسٹیبل کوائنز جنرلی کسی کرنسی, اکثر ڈالر کی ڈیجیٹل ریپرزنٹیشن ہے جو بلاک چین ریلز پہ موو کر رہے ہیں. ٹوکنائزیشن کا مطلب ہے کہ کسی ٹریڈیشنل ایسٹ کو, کسی بانڈ کو, کسی فنڈ کو, کریڈٹ یا فائنینشیل کلیم کو پروگرامیبل ڈیجیٹل فارم میں ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. اور ڈی سینٹرلائز فائنانس کا سمپل مطلب ہے کہ لینڈنگ اور بوروئنگ یا ایکسچینج کیسے کچھ فائنینشیل فنکشن سافٹ ویئر اسمارٹ کانٹریکٹ کے تھرو پرفارم کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے تھرو ہی جو ان ایکسیسیبل ان لیکوڈ ایسٹس تک عام عوام کی رسائی ممکن ہے ایک سیکیور اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں. یہ اب صرف ٹیکنالوجی انتھوزیاسٹکس کی کانورزیشن نہیں ہے. گلوبل فائنانس کے لارجسٹ انسٹیٹیوشنز اس انفراسٹرکچر پہ ایکٹیولی بلڈ کر رہے ہیں. آج سٹیبل کوائنز کی گلوبل مارکیٹ ویلیو $300 بلین سے زیادہ ہے. ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈیشنل ریئل ورلڈ فائنینشیل ایسٹس آلریڈی بلاک چین انفراسٹرکچر پہ ٹوکنائز ہو چکے ہیں. سٹیبل کوائنز کو ایکسکلوڈ کر کے بھی 35 بلین سے زیادہ ریئل ورلڈ ایسٹس آن چین اکانومی میں کا حصہ بن چکے ہیں. اور رپورٹس کا بیس ایسٹیمیٹ ہے کہ کرپٹو کرنسیز اور سٹیبل کوائن کو ایکسکلوڈ کر کے ٹوکنائز فائنینشیل ایسٹس 2030 تک اپروکسیمیٹلی $2 ٹریلین تک پہنچ جائیں گے. سوچیں ذرا کہ یہ کرپٹو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے فورکاسٹ نہیں, یہ ٹریڈیشنل فائنینشیل ایسٹس کو نیو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پہ ریپرزینٹ کرنے کی پوٹینشیل کی اسکیل کی بات کی جا رہی ہے, اور انسٹیٹیوشنز آلریڈی موو کر رہی ہیں. دنیا کی بڑی کمپنیز بلیک راک,
BNY, गोल्डमैन सैक्स टोकनाइज मनी मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर रही हैं, जिसमें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, फेडरेटेड हर्मेस जैसी इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं। जेपी मॉर्गन का ब्लॉकचेन बेस्ड किन्सी इंफ्रास्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है। वीजा स्टेबल कॉइन सेटलमेंट यूज और एक्सपैंड कर रहा है। हांगकांग की हुकूमत अपने टोकनाइज बॉन्ड्स इशू कर चुकी है। फिलीपीन की पहली टोकनाइज ट्रेजरी बॉन्ड इशू में 10 बिलियन पेसोस के टारगेट के मुताबिक में 31 बिलियन पेसोस की डिमांड आ चुकी थी। थाईलैंड ने 5 बिलियन बात का गवर्नमेंट डिजिटल एसेट टोकन अप्रूव किया। सिंगापुर में मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टोकनाइज फंड्स, बॉन्ड्स और प्राइवेट क्रेडिट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी इसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी रियल है, टेक्नोलॉजी रियल है, कैपिटल रियल है, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इस शिफ्ट को सिर्फ कंज्यूम करेगा या अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको अंडरस्टैंड और शेप करेगा। मैं इस टेक्नोलॉजी को इस तरह समझता हूं कि ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स और मेजरेबल आउटकम्स। सबसे पहले हम रेमिटेंस की बात करें तो तकरीबन 40 बिलियन डॉलर्स जो हमें रेमिटेंस पे आते हैं, ये आज भी पुराने मॉडल के थ्रू आ रहे हैं, स्विफ्ट के थ्रू। इस वॉल्यूम पे सिर्फ 1% पॉइंट की अगर हम स्टेबल कॉइन रेमिटेंस से कॉस्ट सेविंग करें तो वो तकरीबन 400 मिलियन डॉलर बनती हैं। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर $200 भेजने की ग्लोबल एवरेज कॉस्ट तकरीबन 6% है, जबकि ये रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स के थ्रू जब आएगी तो ये बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। फिर हमारे फ्रीलांसर्स और डिजिटल वर्कर्स के लिए पाकिस्तान की कई मिलियन यूथ डिजिटली इनेबल्ड वर्क और गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, क्रिएटर्स और टेक्नोलॉजी बिजनेस की दुनिया के क्लाइंट्स को सर्विस पाकिस्तान से बैठ के करते हैं। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। लेकिन हमें आज ये सवाल पूछना है कि 2030 में इन लोगों को ग्लोबल इकोनॉमी से पेमेंट किस तरह आ रही होगी, सेटलमेंट कितनी फास्ट होगी, कॉस्ट कितनी होगी, पाकिस्तान उस वैल्यू को फॉर्मल इकोनॉमी में किस तरह कैप्चर करेगा। ये नए फाइनेंशियल रेल्स अगर लेजिटिमेट एक्सपोर्ट इनकम को इजियर और मोर ट्रांसपेरेंटली ले आए तो हमें उनको रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर कैपिटल का सवाल है। पाकिस्तान को कैपिटल की जरूरत है। एसएमईज को कैपिटल चाहिए, एक्सपोर्टर्स को कैपिटल चाहिए, एग्रीकल्चर को फाइनेंस चाहिए, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट चाहिए। पाकिस्तान के एसएमईज मुल्क के तकरीबन 90% बिजनेस और 40% जीडीपी का हिस्सा है। लेकिन मार्च 2026 में एसएमई फाइनेंसिंग सिर्फ 850 बिलियन रुपए की थी। डोमेस्टिक प्राइवेट फाइनेंसिंग तकरीबन 7% है। एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के पास इंटरनेशनल बायर का इनवॉइस हो जाए जो 60 या 90 दिन के बाद पे होता है। दुनिया में 8 बिलियन यूएसडी से ज्यादा एसएमई क्रेडिट इस वक्त टोकनाइज हो चुकी है, जिससे बोरोवर्स इंटरनेशनली बेटर रेट्स पे बोरो कर सकते हैं। उनके पास क्रेडिबल रिसीवेबल्स हैं, लेकिन उसे वर्किंग कैपिटल आज चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि क्या प्रॉपर्ली रेगुलेटेड टोकनाइज स्ट्रक्चर्स फ्यूचर में पाकिस्तानी ट्रेड रिसीवेबल्स, प्राइवेट क्रेडिट और जो दूसरे क्रेडिबल एसेट्स हैं उनको हम किस तरह कैपिटल मार्केट्स जो इंटरनेशनल पूल में उसे कनेक्ट करें। अगेन हांगकांग टोकनाइज गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू कर चुका है, अदर फाइनेंशियल सेंटर्स पायलट चला रहे हैं। पाकिस्तान को भी स्टडी करना चाहिए कि क्या टोकनाइज सेटलमेंट्स इंप्रूव हो सकती हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडर हो सकती है, क्या हम डायस्पोरा को पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेहतर तरीके से एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। अब वो मौका है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दुनिया की इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री आज तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर्स की है और हर साल बढ़ रही है। पिछले साल ग्लोबल सुकूक इशुएंस रिकॉर्ड साल था, 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा। लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री आज भी डिजिटल रेल्स पे नहीं है। टोकनाइज इस्लामिक फाइनेंस का ग्लोबल लीडर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अब देखें पाकिस्तान के पास क्या है। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हैं। हमारे पास वो डेप्थ है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम वर्चुअल एसेट्स की शरिया लीड ले सकें दुनिया में। इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल प्राइवेट फाइनेंस तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया में ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ग्रांट्स, सब्सिडीज और पब्लिक प्रोग्राम्स पर सिग्निफिकेंट किए जा सकते हैं। पे सिग्निफिकेंट
रिसोर्सेज स्पेंड होते हैं वो सब ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से और ट्रांसपेरेंसी की विजिबिलिटी आती है। तो मैं इस पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी जर्नी को 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करता हूँ। फेज 1 है, हमने रूल्स बिल्ड किए हैं, अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है, लॉ पास किया है, रेगुलेशंस डेवलप किए हैं और वो नोटिफाई किए हैं, लाइसेंसिंग ओपन कर दी है, एग्जिस्टिंग एक्टिविटी को रेगुलेटरी पैरामीटर में लेके जा रहे हैं। आज हम जहां पहुंच गए हैं, अब हमारा फेज 2 है जहां पे हम मार्केट को बिल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबली, क्रेडिबल ऑपरेटर्स को लाइसेंस देंगे, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, AML CFT की कंप्लायंस इंश्योर करेंगे, स्टेट विजिबिलिटी इंप्रूव करेंगे, नॉन कंप्लायंट ऑपरेटर्स के अगेंस्ट एक्शन लेंगे और सीरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को पाकिस्तान में वेलकम करेंगे, उनको एंट्री का मौका देंगे। हमारे थर्ड फेस में है नेशनल यूज केसेस को बिल्ड करना, रेमिटेंस, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट, डिजिटल एक्सपोर्ट्स, ट्रेड फाइनेंस, प्राइवेट क्रेडिट, टोकनाइज सिक्योरिटीज, एसेट टोकनाइज और जहां अप्रोप्रिएट हो वहां पे ट्रांसपेरेंसी पब्लिक सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशंस में लेके आएंगे। लेकिन हर यूज केस के लिए एक टेस्ट होना है, पाकिस्तान को मेजरेबल बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। और मैं अब इस अनाउंसमेंट को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के क्लासरूम्स में जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कुछ मुमकिन है कि 2080 तक वर्कफोर्स का हिस्सा हो। पाकिस्तान की 2023 की कंसेंसस के मुताबिक हमारी पॉपुलेशन 30 साल से कम है। जरा सोचें कि हम आज उनके लिए क्या पॉलिसीज ऐसी बना रहे हैं कि 2050, 2080 में ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे इंटेलिजेंस की कॉस्ट और अवेलेबिलिटी को हम फंडामेंटली हर चीज़ को चेंज कर रही है, ब्लॉकचेन वैल्यू और ओनरशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। हम इंसानी तारीख की सबसे टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में खड़े हैं। इसलिए गवर्नमेंट का काम सिर्फ 2026 की इकोनॉमी को रेगुलेट नहीं करना है, हुकूमत का काम 2050 के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना होता है। 2050 में कौन सी टेक्नोलॉजी डोमिनेट कर रही होगी कोई सर्टेनिटी से नहीं बता सकता। कुछ टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्टेशन से तेज डेवलप हो जाती हैं, कुछ स्लो होती हैं, कुछ फेल हो जाती हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इमर्ज होती हैं कि हम आज उनका नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए स्टेट का काम फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट करना नहीं होता, स्टेट का काम इनकी नेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड करना होता है। पाकिस्तान ने बहुत दफा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस को लेट अप्रोच किया है। दुनिया बिल्ड करती रह गई, हम कंज्यूम करते रह गए, दुनिया स्टैंडर्ड सेट करती रह गई, हम बाद में अडॉप्ट करते रह गए। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की एज में ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है। हम हर रेस नहीं जीत सकते, लेकिन हम हर रेस में लेट एंटर भी नहीं हो सकते। हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इजीली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिस्क्स को इंटेलिजेंटली रेगुलेट करना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी और फिर टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिप्लॉय करना होगा। तो आज हमने वर्चुअल एसेट सर्विस रेगुलेशंस लॉन्च कर दी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इस मोमेंट को सिर्फ एक क्रिप्टो रेगुलेशन के तौर पे याद नहीं रखेंगे, इसलिए इसे एक लार्जर शिफ्ट के तौर पे देखेंगे, फ्रॉम ambiguity to clarity, from informal to accountability। हम पहले रिएक्ट करते थे टेक्नोलॉजी पे जब वो आ जाती थी, लेकिन आज हम वो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं जो बाकी मुल्कों में भी नहीं हुए। ये पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी ने जिस तरह तकरीबन 5 महीने में लाइसेंसिंग इशू की है, ये दुनिया की फास्टेस्ट रेगुलेटरी रजीम है। सिंगापुर, हांगकांग और बड़े मुल्कों को कई कई महीने लग गए ये सब कुछ बिल्ड करते हुए। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस